Hello students, welcome to Exam Rat. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So if you are new to our platform, please visit our website, check all our videos and do subscribe. I am Disha and I'll be teaching you biology for classes 9th and 10th. So today we are going to start with the chapter Control and Coordination and we will cover part 1 of the chapter. So this is a very simple kind of a chapter. It talks about our control over our body and the coordination that our organs and organ systems show. There are so many processes in our day-to-day life which need our control on our muscles, on our cells, on our body, whatever you want to call it, right? For example, when someone tries to hit us, right? Not in a serious way, मजाक में कभी कभी कोई एक्शन हो जाता है which we think can or might harm us, right? So we immediately raise our hand like this, right? Do we plan to raise it, or do we know that the other person is going to do such thing? No, but body का एक reflex होता है, एक action आ जाता है which is suddenly and it is unplanned, right? Okay. So we were talking about कि कुछ reflexes come naturally to us, right? We have not learned this from anyone, right? किसी ने सिखाया था कि जब कोई आके ऐसे हाथ आगे कर दे तो बस you should raise your hands to protect yourself. कहीं किसी बुक में लिखा था, कहीं किसी बड़े ने समझाया था. No, these are some things which come naturally to us. एक एग्जाम्पल ये हो गया कि if someone is just trying to hit you or just trying to harm you, whether serious way, whether like a joke, like friends also sometimes try to just do like this, है ना, आते जाते. So one example is this. Another example can be when you know something can cause damage to your eyes, okay? Anything, whether it's wind flowing by, whether it's an insect which can directly enter your eye, immediately what do? You close your eyes, ऐसे बंद हो जाती है आंखें, right? Again, this is not something जो हम सीख के आए कहीं से या हमें किसी ने बताया था कि ऐसे करना होता है. These are some actions which body एकदम से body ऐसे actions कर लेती है, right? So these are some actions which define the reflex actions, the impulses that our body has, okay? So we will study about one example here. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. Just what I told you कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी चीजें कर जाते हैं, बट हमें वो किसी ने बताई नहीं होती है या हमने कहीं पे पढ़ी नहीं होती है. देयर इज नो मैनुअल टू इट, राइट? वी आर नॉट लर्निंग दिस सिंस चाइल्डहुड, but this is something which comes to us as an instant reaction, right? So it becomes apparent that all these movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement and response. So depending on the type of the situation is, the action will differ, right? For example, जब eyes के related है तो my eyes will close, right? And when I said that if I feel that someone is about to hit me or harm me, तो मेरे हाथ ऐसे अपने आप को बचाने के लिए चले जाएंगे. And there are so many things, like the example here tells us, जब कोई hot object को touch करने लगते हैं, so immediately when we touch it, we take our hand back like this, right? So depending on the situation, तरह तरह के reflexes रहते हैं, right? So we can say that these things which are causing us to respond, what are the things? Light, heat, cold, smell, touch, right? ये जो सारी conditions हैं जिनके बारे में हम अभी सुन रहे थे, इन सबको हम stimuli
या स्टिमुलस बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सिर्फ एक सिंगुलर फॉर्म है, एक प्लूरल है, बट स्टिमुलाई स्टिमुलस इट्स द सेम थिंग. So these are called as stimuli. The changes in the environment conditions to which organisms respond is stimuli. It can trigger a physical or behavioral change. Right, what we said, जो हमारे अंदर से जो एक एक्शन आता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज. राइट, देयर इज गोइंग टू बी नो ह्यूमन बीइंग जिसकी आंख के पास ऐसे हाथ ले जाओ एंड वो आंखें बंद ना करे. राइट, so this is a reflex to us which comes naturally to us, no one taught it. So क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टिमुलस हो सकते हैं? इट इज हीट, कोल्ड, स्मेल, टच, पेन एक्सेट्रा एंड so many others also. So we can say कि stimulus जो है, in other words, it is causing us to react. मतलब कुछ ऐसा होता है कि जिससे हम एक रिएक्शन दे देते हैं. राइट, द रिएक्शन इज प्रोटेक्टिव, अपने आप को बचाने के लिए, बट हम एक रिएक्शन दे जाते हैं. राइट, सो सच इवेंट्स आर ड्यू टू स्टिमुलस. राइट, ओके. Many reactions to stimulus can be categorized under reactions by plants and animals and reactions by unicellular or multicellular organisms. ठीक है. Now, plants में क्या है, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता. एनिमल्स के पास रिएक्शन के लिए क्या है, हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, muscular tissues हैं, but mostly we can say that it is nervous system and endocrine system, and this is what we are going to cover in the chapter also. Right, so plants do not have a nervous system. Right, we all know that plants के पास कोई nervous system नहीं होता. They show response in the form of growth. अभी ज़्यादा confusing लग सकती है ये line, but we will study this later in the chapter. ठीक है. So they show response in the form of growth. They have plant hormones in them. Okay, we will also study about this part, so deliberately I am not explaining it here. Right, अब आ जाते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होता है. हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा यूनिसेलुलर जिसका नाम था, बाय द डायग्राम आई थिंक आप सबको याद आ जाना चाहिए कि ये क्या स्ट्रक्चर है. We have studied this ample number of times, not even one time. बहुत बार पढ़ा है ये. So this is the structure of an amoeba. ठीक है, अभी कोई डिटेल में नहीं जाएंगे. हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही खाना अमीबा को दिखता है, अमीबा वहां जाता है, अपना स्यूडोपोडिया उसके आगे पीछे उसको सराउंड कर लेता है, इनसर्कल कर लेता है एंड फूड को इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस. राइट, ये प्रोसेस भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है ऑफ अ स्टिमुलाई. व्हाई? बिकॉज अमीबा कुड इट कुड डिसाइड कि यहाँ पे फूड है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और मैं खाना खा सकता हूँ. राइट, so that presence of food in itself is a stimuli. Right, multicellular organisms like us, वो तो वैसे ही रिएक्ट कर सकते हैं स्टिमुलस को. राइट, now we have the reactions are due to some things. Right, जैसे कि my hand here, if I'm going to touch a hot object, there is going to be something which will tell me कि अपना हाथ पीछे कर लो, the object is very hot and it might harm you. Right, now there are two parts to it. ठीक है, if we can say, okay, let's just draw a diagram, a rough one. I don't think this diagram will be of use to you in any paper or something, but सिर्फ understanding के लिए. ये क्या बना दिया?
Okay, let's say this is some hot object, fire, whatever you want to call it, and this is my hand which is about to go there and touch it. Okay, so the moment my hand will touch it, okay, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ये बहुत ध्यान से अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, यू आर गोइंग टू एस दिस चैप्टर, बिकॉज और कुछ इस चैप्टर में है ही नहीं. देयर इज ओनली टू थिंग्स हियर. देयर आर, ओके, फर्स्ट थिंग इज what is there which is going to tell me that the object is hot, right? So एक तो यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, या जिनके पास रिसेप्टर्स भी होंगे. सो बेसिकली आई हैव टू सेंस फर्स्ट कि ये यहाँ पे कुछ डेंजर है, ओके, समथिंग इज देयर विच कैन हार्म मी. देन सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज टेकिंग द एक्शन फॉर दैट डेंजर. और वो एक्शन क्या है? हाथ पीछे कर लेना ऐसे, यू नो, जस्ट टू पुल बैक. Right? So this particular slide here is talking about part one of the thing that I just talked about. Part one was कि मुझे कैसे पता मुझे इससे हार्म हो सकता है, राइट? हाउ डू आई नो? सो हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास क्या है, उसका ये एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है. सो वी हैव eyes, ear, tongue, skin and nose. Now, ये तो organs है, but इनके पास ऐसा क्या है जो हमें सेंस करने में एक सेंस ऑफ जजमेंट दे पाता है, राइट? सो दे हैव रिसेप्टर्स इन देम, राइट? रिसेप्टर्स, रिसेप्टर वर्ड से हम अगर उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, रिसेप्टर से मतलब रिसीव करेंगे. सो दे विल रिसीव द थिंग कि यहाँ पे कुछ हार्म है, कोई डेंजर है, राइट? सो आईज के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, राइट? व्हाट इज द स्टिमुलाई टू देम? लाइट, राइट? एयर के पास जो है फोनो रिसेप्टर्स है. वी ऑल रिसीव फोन कॉल्स, फोन से ही होती हैं. सो वी पुट इट टू आवर ईयर, राइट? एयर प्लग्स होते हैं, वो भी कान में लगाते हैं ऐसे. सो एयर से फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है. सो ये साउंड के लिए हो गया, ठीक है. टंग, टंग क्या हेल्प करती है? टेस्ट सेंसेशन. सो ये टेस्ट के लिए हो गया. एंड उसका जो फोटो रिसेप्टर है उसका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है. स्किन टच के लिए, राइट? सो उसका रिसेप्टर क्या होगा? थर्मो रिसेप्टर, ठीक है. एंड नोज इज फॉर स्मेल. तो जहाँ पे भी स्मेल वर्ड आ जाता है हम उसको ऑल फैक्ट्री वर्ड इज अ मोर प्रॉपर वर्ड फॉर इट, राइट? सो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है. नाउ दिस होल चैप्टर इज ओनली एंड ओनली बेस्ड, अगर मैं बोलूँ ये जो एक एग्जाम्पल था ये फायर और हैंड पुल बैक करने वाला, सो दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट. पूरा चैप्टर ही इसके बारे में. यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? ठीक है, रिसेप्टर्स थे, ठीक है. रिसेप्टर्स किस में थे? सेंसरी ऑर्गन्स के पास थे. सेंसरी ऑर्गन्स कौन से थे? ये 5 थे जो अभी पढ़े. रिसेप्टर्स से इफेक्टर्स तक का जो आपका डेस्टिनेशन है उसके बीच में कुछ सेल्स इन्वॉल्व है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. देन ब्रेन को सिग्नल गया टू एक्ट ऑन इट. सो दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन, वी कैन से वन थिंग ओनली, कि आपके रिफ्लेक्सेस, आपके एक्शंस कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, राइट? नाउ touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. Very well, right? So receptors contain group of cells which are sensitive to stimuli, right? जब वो सेंसिटिव है टू स्टिमुलाई तो क्या होगा? जैसे ही मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जो भी स्टिमुलस है उसको मैं टच करने वाली हूँ, उस सेंसिटिविटी की वजह से एकदम से हाथ ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है. सो रिसेप्टर्स कंटेन ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई. At receptor they have an electrical impulse, right?
सो वो जो इम्पल्स है वो हमें कॉज करती है टू टेक अ सडन एक्शन. अगर आप बाय एनी नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी इफ यू टेक आउट द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्पल्स, इम्पल्स का मीनिंग क्या है? राइट. सो इम्पल्स का मीनिंग क्या है? सडन स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्विक डिजायर टू एक्ट. सो वो भी इम्पल्स क्या है? सडन एक्शन, राइट, विदाउट इवन थिंकिंग. हम किसी के लिए वी यूज द टर्म सो एंड सो पर्सन इज वेरी इम्पल्सिव, राइट, just thinks, just acts without thinking, right? So impulse is the same thing कि बस एक्शन उसी टाइम ले लिया, बिल्कुल सोचा भी नहीं, राइट? सो ऐसा ही एक्शन है कि electrical impulse which causes a chemical reaction in our body. Now we will study about it. फिलहाल इतना ही, यहाँ पे इसको फुल स्टॉप लगा दो. So this diagram also explains that there is a hot object. ठीक है, impulse गया यहाँ से. I was trying to make this diagram but I couldn't, I think. So this is the hot object. यहाँ से ये impulse गया, ठीक है. स्किन के जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने एक मैसेज भेजा टू द ब्रेन एंड हमारा हाथ पीछे गया. यू सी, एक सेकंड से भी कम लग रहा है इस प्रोसेस को, बट इसमें कितने सारे पार्ट्स, कितना सारा मैकेनिज्म, मशीनरी इन्वॉल्व है, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. नाउ दिस सडन एक्शन इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है. ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इम्पल्सिव एक्शन, सडन एक्शन, ये सारी चीजें क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है. सो अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन involuntary reaction of the body in response to stimuli, right? I think I have explained this. Now ये जो पाथ जा रहा है पूरा ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है, ये सारा पाथ इज गोइंग टू बी कॉल्ड as a reflex arc, right? So what helps in this action? एक पार्ट था रिसेप्टर्स, ठीक है, दूसरा है इफेक्टर्स, राइट? सो मैंने रिसीव किया ये कॉन्सेप्ट को, इस चीज को, कि यहाँ पे डेंजर है, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको मत टच करना. बट मुझे उससे उससे क्या बेनिफिट हो गया अगर मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है? इफ आई अंडरस्टूड दैट दिस object is hot or cold and it's going to just give me some kind of harm. Cold तो harm नहीं देगा, but चलो whatever the stimulus is, right? So if I've understood that this is dangerous to me, but अगर मैं एक्शन ही ना ले पाई वहां पे, मैं उसके ऊपर हाथ अपना रख रही हूँ फ्लेम के ऊपर, कैंडल के ऊपर या हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो व्हाट इज द यूज, राइट? सो उसके लिए हमारे पास कुछ इफेक्टर्स होते हैं जो हमें एक एक्शन लेने में हेल्प करते हैं, राइट? सो दे हेल्प इन गिविंग आउट अ रिस्पॉन्स. रिसेप्टर्स हैड टू रिसीव, इफेक्टर्स हेल्प इन गिविंग आउट अ रिस्पॉन्स. वेरी इजी, राइट? इन्हीं इफेक्टर्स की वजह से जो हैंड है वो मूव्स अवे ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, राइट? सो हैंड को किसने बताया कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है या ये डेंजरस है? रिसेप्टर्स. कहाँ पे रिसेप्टर्स थे? वो 5 ऑर्गन्स जो हमने पढ़े, ठीक है. कौन से रिसेप्टर्स थे उनके नाम हमने पढ़ लिए, राइट? नाउ हैंड को इंफॉर्मेशन तो है, पता तो लग गया कि हॉट है, बट वो जो एक्शन जो लेना था हाथ पीछे करने का, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? ये पार्ट इफेक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. देन ये सारे एक्शंस जो हो रहे हैं ये सब किसी चीज की वजह से होंगे, बिकॉज हमारी बॉडी में हर जगह cells present है. We are made up of cells, cells made up of tissues, tissues made up of organs, and organs form organ systems. But हर जगह एक ही टाइप का सेल नहीं है. We are a highly complex kind of an organism and specialities हैं, हमारे टिश्यू स्पेशलाइज्ड हैं. जैसे अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किडनी के पास जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन, राइट? सेम वे यहाँ पे जो नर्व सेल्स हैं जो ये इम्पल्स में हेल्प कर रहे हैं, इस एक्शन को टेक प्लेस करा रहे हैं, दोज नर्व सेल्स आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स, राइट?
So what do the neurons do? They carry messages in the form of electrical impulses and signals. So if I say that this signal, this impulse was going somewhere, there has to be a smaller unit helping in it. That's fine that I have receptors, that's fine that I know the direction of impulse, I know that my brain will direct me, will help me pull my hand back. But there has to be a very, very small unit helping everybody through it, right? So the smallest unit that is helping in the impulse transmission is a nerve cell or a neuron. So what is a neuron doing? It is carrying messages in the form of electrical impulses or signals, right? So you have to learn this diagram of a neuron. No choice here. That it comes in papers, right? So there are three main parts to it. एक तो cell body है, ठीक है? ऐसा ऐसा कुछ cell body होगा. न्यूक्लियस होगा सेंटर में, साइटोप्लाज्म होगा. सेल बॉडी के बाद उसी सेल बॉडी से कुछ शॉर्टर फाइबर्स निकल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे, राइट? सो दीज फाइबर्स आर डेंड्राइट्स, राइट? देन उसके बाद आगे जाके एक और यहाँ पे लेबलिंग देखो, एक्सॉन लिखा है, राइट? सो एक्सॉन जो है इट हैज अ कवरिंग ओवर इट, ठीक है? वो जो एक जो लेयर है उसके ऊपर जो एक कवरिंग है उसको माइलिन शीथ बोलेंगे, राइट? So it can be myelinated and it cannot be myelinated. So जहाँ पे myelin है उसको myelinated बोल देंगे, जहाँ पे नहीं है नॉन myelinated हो जाएगा. और myelin किसका बना है? फैट एंड प्रोटीन का, ठीक है? इसके अलावा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइलिन शीथ है, एक्सॉन है एंड एंड में जाके नर्व एंडिंग्स है जहाँ पे नर्व एंड हो रही है, ठीक है? अभी के लिए इतना ठीक है. ओके अब यहाँ पे कैसे पहुंच रहा है हमारा इम्पल्स? लेबलिंग के साथ साथ जो साइड में साइमल्टेनियसली पॉइंट्स चल रहे हैं हम उनको साथ साथ रीड करेंगे. सो नंबर वन इज हियर, डेंड्राइट विल पिक अप द इम्पल्स. सो यहाँ से ये डेंड्राइट के फाइबर्स हैं, राइट? ये इम्पल्स पिक करेंगे, यहाँ से इम्पल्स गया, ठीक है? दे पास इम्पल्स टू सेल बॉडी देन एक्सॉन. दिस इज द सेल बॉडी, ये वाला स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे इम्पल्स पास कर देंगे एंड यहाँ से आगे एक्सॉन तक ले गए. तो ये इम्पल्स यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, राइट? अब ये हाफ वे पहुंच गया. थर्ड स्टेप, the impulse will go to another neuron through junction called synapse. Okay, so this is the part that we have to understand. ये नर्व एंडिंग है, ठीक है? नर्व एंडिंग के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन भी होगा, राइट? लेकिन जो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर अबाउट टू लर्न इज immediately after it a new nerve cell is not going to start. So there's always going to be some gap. That gap is synapse, right? Your NCERT book also has इतने बड़े बड़े golden words में लिखा है gap synapse, right? So synapse is the gap. Now between two neurons the junction has a gap called synapse. The impulse releases a chemical substance. Okay, so before this gets confusing, impulse इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो रहा था, ठीक है? इम्पल्स एक केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज कर रहा है अब साथ में, ठीक है? वो जो सब्सटेंस है वो अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा इन द नेक्स्ट न्यूरॉन. सो बेसिकली ये एक नेवर एंडिंग साइकिल जैसा ही चलता जाएगा, राइट? हेंस द साइकिल गोज ऑन. ओके, सो स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई ने रिसेप्टर्स को मतलब स्टिमुलस लेने में हेल्प किया, उसको पता लग गया कि हाँ रिसेप्टर्स को कुछ पता लगा. देन नर्व सेल्स को इम्पल्स मिल गया, इम्पल्स मिलने के बाद इम्पल्स से केमिकल सब्सटेंस जनरेट होगा जो कि आगे जाके फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देगा, ठीक है? ओके, then we will talk about nervous system, but
I don't think all of this is given to you in the book. So this is just a फ्लो चार्ट बिकॉज बुक में क्या है, हाँ बुक में ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से दी है बुक में, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन ही नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है, राइट। सो वी हैव अ फुल कैटेगराइजेशन कि ब्रेन किसके अंडर आता है एंड बाकी किसके अंडर आते हैं। दैट इज वाई एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ रखा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इफ आई ड्रॉ a human structure here, what has happened to the diagram? Okay, let's say ये बैक है किसी ह्यूमन बीइंग की, राइट। सो यहाँ पे ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन होता है और यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, राइट। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी नर्व्स होगी और इसमें ऑटोनॉमिक, वॉलंटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ये सब है, बट आई थिंक दिस इज देयर टू यू इन हायर क्लासेस लाइक 12th और 11th। आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डिटेल में है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन दैट वी हैव इन सिलेबस। सो ब्रेन क्या है? इट इज द मोस्ट important थिंग टू अस. इट इज अ coordinating center. इट इज located inside a skull एंड क्योंकि बहुत important है, delicate भी है, it is protected due to skull and cranium. So brain के 3 parts हैं. There is forebrain, there is midbrain and there is hindbrain, right? Actually it is not something जो इतना मैं concept wise अभी दे पाऊंगी. You just have to know the names, right? Forebrain, midbrain and hindbrain. Okay. So the brain sits inside a bony box. Inside the box, the brain is contained in a fluid-filled balloon which provides further shock absorption. So the vertebral column or backbone protects the spinal cord. This we studied अभी ये diagram में कि vertebral column क्या करता है, spinal cord को protect करता है। अब forebrain पे आ जाते हैं। Forebrain is the thinking part of the brain. It has regions which receive sensory impulses from various receptors, ठीक है। तो सेपरेट एरियाज जो हैं फोर ब्रेन के आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेपरेट फंक्शंस, जैसे कि हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन, ठीक है। The sensation of feeling full is also because of a center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain. अब इन सब के भी आगे कुछ पार्ट्स हैं, अगेन सारों की अभी हमें वी डोंट हैव टू स्टडी सो मच डिटेल अबाउट देम, ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ। सो फोरब्रेन के जो पार्ट्स हैं दैट इज सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, राइट। सो जो सेरेब्रम है वो वॉलंटरी एक्शंस लेने में हेल्प कर रहा है, रीजनिंग में हेल्प कर रहा है, इमोशनल डिसीजंस, इमोशंस फील करने में हेल्प कर रहा है, राइट। बट दीज आर अबाउट वॉलंटरी थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इनवॉलंटरी रहती हैं, राइट। वहां पे किसका रोल आ रहा है? हाइंड ब्रेन का, राइट। इसके पास भी 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, cerebellum and pons, ठीक है। Our hearts beat without our thinking about it. We cannot control these actions easily by thinking about them, even if we want to control it, right? So many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All these involuntary actions are controlled by medulla in the hindbrain. So involuntary action क्या है? Salivation है, vomiting है, blood pressure है, right? We cannot control these. Even if I wish to control my BP, can I control it? No. So these are controlled by hindbrain. Now we come to midbrain. So thinking about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil, these are possible due to part of the hindbrain called cerebellum, right? So
This is responsible for precision of voluntary actions and posture and balance of body. Last is midbrain. So it controls reflex movements of head, neck, and trunk. Eye muscle reflex is an example of what it controls, right? Eye lens shape, etc. So midbrain के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है book में, but we can just learn. Last we come to spinal cord. So the pathway for messages sent by the brain to the body and from the body to the brain, it forms the pathway, right? कैसे? From brain, ठीक है, to body, right? And from body to brain. So इसका, I think this is where we end the chapter. So we studied about human brain and spinal cord, and part 2 of the chapter will cover about the endocrine system and plant hormones. So we are done with part 1. If you have any doubts, you can let us know, and please tell us what all we can improve, and thank you for watching.